This is me Punish Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic reasoning in artificial intelligence. So, what is reasoning? The human solves problem by combining the facts with knowledge. They take facts about a specific problem and use them with their general understanding of the problem domain to derive logical conclusions. This process of working with knowledge, facts, and problem solving strategies to draw new conclusion is called reasoning. Now, what are the various types of reasoning? So basically in artificial intelligence, the total reasoning techniques are categorized into 6 types. First category is a deductive reasoning, second one is abductive reasoning, third one is inductive reasoning, fourth one is common sense reasoning, fifth one is monotonic reasoning, and sixth one is a non-monotonic reasoning. So now we have to study all these techniques one by one. The very first reasoning technique we have, that is a deductive reasoning. So deductive reasoning is a deducing new information from the logically related known information. It is the form of valid reasoning, which means the argument's conclusion must be true when the premises are true. Deductive reasoning is a type of propositional logic in artificial intelligence, and it requires various rules and facts. It is sometimes referred as top down reasoning and contradictory to inductive reasoning. In deductive reasoning, the truth of the premises are guarantees the truth of the conclusion. Now, we have to understand the working principle of deductive reasoning. Working principle is modus ponens. So, how modus ponens working principle works? So, it is stated that if A is true and A implies B is true, then B is true. तो इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एग्जांपल दिया है, वी हैव वन इम्प्लीकेशन, इफ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन देन आई विल गेट वेट. तो केयरफुली ध्यान दीजिएगा इस इम्प्लीकेशन पे. ये इम्प्लीकेशन को अगर आप देखोगे तो इम्प्लीकेशन में दो पार्ट है. इफ आई एम स्टैंडिंग इन द रेन और सेकंड पार्ट जो है देन आई विल गेट वेट. तो फर्स्ट पार्ट को बोल रहे हैं हम पार्ट ए और सेकंड पार्ट को बोलेंगे हम पार्ट बी. एंड देन वी हैव गिवन वन एक्सियम और एक्सियम गिवन है आई एम स्टैंडिंग इन द रेन. अभी आप इसी चीज को मोडस पोनेंस वाले रूल के साथ मैच करके देखिए. फर्स्ट वाला जो फैक्ट है दैट इज इफ ए इज ट्रू एंड ए इम्प्लाइज बी इज ट्रू. यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम क्या है, आई एम स्टैंडिंग इन द रेन. तो दिस इज व्हाट अ पार्ट ये. एंड देन इम्प्लीकेशन अगर हम देखेंगे तो इम्प्लीकेशन होता है इफ ए देन बी. तो इफ ये का मतलब क्या है, आई एम स्टैंडिंग इन द रेन. बी का मतलब है आई विल गेट वेट. एंड देयरफॉर इफ वी विल अप्लाई the working principle modus ponens for given set of implication and axiom, then if I am standing in the rain, ये वाली चीज अगर true है और हमारे पास implication है if I am standing in the rain then I will get wet, तो definitely इसका output क्या आएगा, I will get wet. And therefore from given set of implication and axiom we can conclude that I will get wet. So this is what the reasoning technique in which we are applying the modus ponens as a working principle and we are drawing new conclusion. This was deductive reasoning. Next we have second reasoning technique, abductive reasoning. तो एब्डक्टिव रीजनिंग में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? तो एब्डक्टिव रीजनिंग इज द फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विच स्टार्ट्स विद अ सिंगल और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन then seeks to find the most likely explanation or conclusion for the observation. Abductive reasoning is an extension of deductive reasoning, but in abductive reasoning, the premises do not guarantee the conclusion. Abduction is a form of deduction that allows for plausible inference. यहाँ पे plausible inference का मतलब ये है कि sometime हमने जो conclusion draw किया है वो सही हो सकता है and sometime it may not, and that's why it is called as plausible inference over here. Now we have to understand the working principle for this abductive reasoning. तो हियर वर्किंग प्रिंसिपल इज अ मोडस टोलेंस. ध्यान दीजिएगा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मोडस टोलेंस. अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो वहां पे हमने जो वर्किंग प्रिंसिपल यूज किया था वो था मोडस पोनेंस. हियर वी हैव मोडस टोलेंस. तो मोडस टोलेंस कैसे वर्क करता है? तो इफ बी इज ट्रू एंड ए इंप्लाइज बी इज ट्रू देन ए इज ट्रू क्वेश्चन मार्क. ध्यान दीजिएगा क्या है फैक्ट, इफ बी इज ट्रू एंड ये इम्प्लाइज बी इज ट्रू. तो ये इम्प्लाइज बी का राइट हैंड पोर्शन हमको दिया हुआ है. इससे पहले
इंडक्टिव रीजनिंग में ये इम्प्लाइज बी का लेफ्ट हैंड पोर्शन हमको दिया हुआ था, यहाँ पे राइट हैंड पोर्शन दिया हुआ है, तो ये बी इज ट्रू एंड इम्प्लाइज बी इज ट्रू, देन ये मे बी ट्रू, ये मे नॉट. दिस इज व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू वन एग्जाम्पल. So we have example. Implication is ground is wet if it is raining. Implication is ground is wet if it is raining. It means that if it is raining, then ground will be wet. And axiom is ground is wet. तो अभी यहाँ पे दिया है एक फैक्ट कि if it is raining, then ground is wet. और बाद में एग्जाम दिया है कि ग्राउंड इज वेट. तो ग्राउंड क्यों वेट है? तो ग्राउंड वेट होने का रीजन भी ये हो सकता है कि इट इज रेनिंग, or it might be due to another reason. That's why यहाँ पे जो conclusion होता है, that conclusion is called as plausible conclusion over here. Now we have to go for the third reasoning technique which is called as inductive reasoning. अब inductive reasoning कैसे वर्क करेगा? तो inductive reasoning is a form of reasoning to arrive at a conclusion using limited set of facts by the process of generalization. तो यहाँ पे हम generalization mechanism यूज करते हैं. It starts with a series of specific facts or data and reaches to a general statement or a conclusion. So here simply we have to examine the series of facts and finally we have to draw the conclusion. Inductive reasoning is a type of propositional logic which is also known as cause effect reasoning or bottom up reasoning. तो ध्यान दीजिएगा, cause effect reasoning या फिर bottom up reasoning दोनों नाम से inductive reasoning को जाना जाता है. In inductive reasoning, we use historical data or various premises to generate a generic rule for which premises support the conclusion. In inductive reasoning, premises provide the probable support to the conclusion, so the truth of premises do not guarantee the truth of the conclusion. So we have to understand the working principle for inductive reasoning. We have given this working principle as for a set, so we have a set X and X will consist of elements A, B, C, D. And if we are saying that property P is true for A, then property P is true for B, then property P is true for C. So in general, we can say that the property P is true for all the elements of set X. इसका मतलब property P will be true for entire set X. So this is what the working principle of inductive reasoning. And now we have to understand this with respect to one example. So we have given one example. Premise is all the pigeons we have seen in the zoo are white. Premise is all the pigeons we have seen in the zoo are white. So from this we can conclude that all the pigeons to be white. Getting it? तो सिंपली जो भी पिजन्स को हमने जू में देखा था वो सारे के सारे व्हाइट्स थे, तो इसी से हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पिजन्स व्हाइट कलर के रहेंगे. गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट द जनरलाइजेशन मैकेनिज्म व्हिच वी आर अप्लाइंग इन इंडक्टिव रीजनिंग. नाउ वी हैव नेक्स्ट रीजनिंग टेक्निक दैट इज कॉमन सेंस रीजनिंग. तो कॉमन सेंस रीजनिंग इज एन इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ रीजनिंग which can be gained through the experience. Common sense reasoning simulates the human ability to make pre-assumptions about events which occur on every day. It relies on good judgment rather than exact logic and operates on a heuristic knowledge and heuristic rules. So this point is very important. कॉमन सेंस रीजनिंग में हम एग्जैक्ट जजमेंट की तरफ या एग्जैक्ट लॉजिक की तरफ नहीं जाते हैं, जबकि हम ह्यूरिस्टिक नॉलेज या ह्यूरिस्टिक रूल्स लगाते हुए बाय डे टू डे एक्सपीरियंस जो भी हम सीखते हैं उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हियर वी हैव वन एग्जांपल. वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस एट ए टाइम. और ये चीज शायद से हमने कहीं किसी ने हमें पढ़ाया नहीं या कहीं हमने पढ़ा नहीं है. वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस एट ए टाइम, ये हम डे टू डे एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं. ये कॉमन सी बात है कि ये एक सिंगल पर्सन एट ए टाइम एक ही जगह पे रहेगा. सेकंड फैक्ट है इफ आई पुट माई हैंड इन फायर देन इट विल बर्न. तो आई थिंक इस पर्टिकुलर फैक्ट को भी हमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं या कहीं हम पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, ऐसा नहीं है. डे टू डे एक्सपीरियंस में हमारे साथ कोई एक इंसिडेंस हो जाता है कि जिससे ये वाली चीज हम सीख जाते हैं कि इफ आई विल पुट माई हैंड इन फायर देन इट विल बर्न. तो रोजमर्रा की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं, और एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करके जो सीखने वाली चीज़ें है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉमन सेंस रीजनिंग.
Next reasoning technique is a monotonic reasoning. In monotonic reasoning, once the conclusion is taken, then it will remain the same even if we add some other information to the existing information in our knowledge base. इसका मतलब ये है कि एक बार अगर हमने रीजनिंग में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया तो फिर वो कंक्लूजन एज इट इज रहेगा, वो अपडेट नहीं होगा। जबकि उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाद में अगर हम नॉलेज बेस में ऐड भी करेंगे, फिर भी एक बार लिया हुआ डिसीजन सदा सदा के लिए फाइनल रहेगा। मीन्स वंस द डिसीजन विल बी टेकन, इट विल बी एज इट इज। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस मोनोटोनिक रीजनिंग। तो मोनोटोनिक रीजनिंग में मोनो वर्ड्स यही इंडिकेट करता है कि अगर हमारा कोई एक फैक्ट है तो उसका एक ही फॉर्म रहेगा। एक ही फॉर्म यानी ओनली वन फॉर्म, ओनली वन का मतलब है मोनो। एंड दैट्स व्हाई इन मोनोटोनिक रीजनिंग वंस द कंक्लूजन विल बी टेकन, इट विल रिमेन एज इट इज। In monotonic reasoning, adding knowledge does not decrease the set of propositions that can be derived. To solve monotonic problem, we can derive the valid conclusions from the available facts only, and it will not be affected by the new facts. Now, monotonic reasoning is not useful for the real-time systems, as in real-time facts get changed, so we cannot use monotonic reasoning. This is what a very important thing. मोनोटोनिक रीजनिंग में हमने कहा है कि एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को हम एज इट इज रखेंगे, उसको बाद में हम अपडेट नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये मोनोटोनिक रीजनिंग है। बट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम रियल टाइम में डिसीजन लेने जाते हैं तो फिर हमारा डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन रियल टाइम सिनेरियो जैसे जैसे रिस्पॉन्सेस हमारे पास आते जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिस्पॉन्सेस वी हैव टू अपडेट अवर डिसीजंस। और जहाँ पे डिसीजन अपडेट करना ही अलाउड नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हम रियल टाइम सिनेरियो में रीजनिंग अप्लाई नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर मोनोटोनिक रीजनिंग विल नॉट बी द गुड क्राइटेरिया फॉर रियल टाइम रीजनिंग। देयरफॉर यहाँ कहा गया है कि मोनोटोनिक रीजनिंग कैन नॉट बी यूज फॉर रियल टाइम सिस्टम्स। मोनोटोनिक रीजनिंग इज यूज्ड इन conventional reasoning system, and a logic based system is a monotonic. In theorem proving is example of monotonic reasoning. तो थ्योरम प्रूविंग के लिए हमें बार बार डिसीजन चेंज नहीं करने होते, जो चीज़ें होती है वो फिक्स्ड होती है, और वो फिक्स चीज़ें अप्लाई करते हुए हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है। तो इन दैट सिनेरियो हम मोनोटोनिक रीजनिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मोनोटोनिक रीजनिंग का बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे तो वो रहेगा थ्योरम प्रूविंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा फैक्ट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इट इज ट्रू फैक्ट and it cannot be changed even if we add another sentence in the knowledge base like the moon revolves around the earth or earth is not round। तो एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिक रीजनिंग। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ मोनोटोनिक रीजनिंग। द फर्स्ट एडवांटेज इज in monotonic reasoning each old proof will always remain valid. Second, if we deduce some facts from the available facts, then it will remain valid for always. क्यों? क्योंकि उस चीज को हम अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो हियर वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोटोनिक रीजनिंग। फर्स्ट disadvantage is that we cannot represent the real world scenario using monotonic reasoning, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चीजें कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है और ऐसे अपडेशंस मोनोटोनिक रीजनिंग सपोर्ट नहीं करता। दिस इज व्हाट द डिसएडवांटेज। Second disadvantage is that hypothesis knowledge cannot be expressed with monotonic reasoning, which means facts should be true. Third disadvantage is since we can only derive conclusions from the old proofs, so new knowledge from the real world cannot be added. So these are the disadvantages of the monotonic reasoning. Now we have to go for our last reasoning technique, that is non-monotonic reasoning. तो जैसे कि नाम दिया है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग, इसका मतलब मोनोटोनिक रीजनिंग में जो भी देखा था उसका रिवर्स सिनेरियो यहाँ पे होगा। तो इन नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग सम कंक्लूजन्स में बी इनवैलिडेटेड इफ वी ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन टू अवर नॉलेज बेस। तो ध्यान दीजिए कि हमने ऑलरेडी कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करके रखे हैं एंड दीज कंक्लूजन्स में बी इनवैलिडेटेड इफ वी ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन टू अवर नॉलेज बेस। यानी अगर हमारे नॉलेज बेस में हम कुछ अपडेशंस परफॉर्म करते हैं तो वो अपडेशंस की वजह से हमारे फैक्ट्स चेंज होंगे। एंड दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन मोनोटोनिक। यानी हमारे फैक्ट्स के मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, पुराना वाला फॉर्म एज इट इज रहेगा जरूरी नहीं है।
जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे हमारे फैक्ट्स भी चेंज होते जाएंगे. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. So logic will be said as non-monotonic if some conclusions can be invalidated by adding more knowledge into our knowledge base. Non-monotonic reasoning deals with incomplete and uncertain models. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन होती है. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में अगर हमको रीजनिंग अप्लाई करना है तो डेफिनेटली हम नॉन मोनोटोनिक के लिए जाएंगे. क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहेगी और अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो वहाँ की सर्टेनिटी बार बार अपडेट होती रहेगी. एंड देयरफॉर जैसे जैसे हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे फैक्ट्स हमको अपडेट करना है. और ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग को सपोर्ट करेंगे. तो ह्यूमन परसेप्शंस फॉर वेरियस थिंग्स इन डेली लाइफ इज अ जनरल एग्जांपल ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. तो दिस इज व्हाट अ वेरी गुड एग्जांपल. किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोगों के परसेप्शंस कंटिन्यूअसली चेंज होते जाते हैं और कोई चीज जब कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है इसका मतलब हमारे फैक्ट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं. जहाँ पे कंटिन्यूअस अपडेशन हम अलाउ करते हैं दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. लेट सपोज द नॉलेज बेस कंटेंट द फॉलोइंग नॉलेज. हमारे नॉलेज बेस में कुछ फैक्ट्स है. बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई एंड पीटी इज अ बर्ड. ऐसे तीन तरह के फैक्ट्स हमारे पास है. पहला है बर्ड्स कैन फ्लाई, सेकंड है पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई और थर्ड है पीटी इज अ बर्ड. So from the above sentences we can conclude that PT can fly. अब PT फ्लाई कर सकता है ऐसा क्यों डिराइव किया हमने? क्योंकि बर्ड्स कैन फ्लाई एंड पीटी इज अ बर्ड देयरफॉर पीटी कैन फ्लाई. गेटिंग इट? इस तरीके से हमने कंक्लूजन अभी तक के ड्रॉ करके रखा है. एंड आफ्टर दैट देयर इज सम अपडेशन टू अवर नॉलेज बेस. और अपडेशंस परफॉर्म करते वक्त हमने अपडेशन ऐसा परफॉर्म किया कि पीटी इज अ पेंगुइन और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हमारे नॉलेज बेस में ऐड हो रहा है तो ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस नॉलेज बेस अभी हमारे फैक्ट्स क्या बन जाएंगे? बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, पीटी इज अ बर्ड और लास्ट में फिर हमने कंक्लूड किया कि पीटी इज अ पेंगुइन. तो पीटी अगर पेंगुइन होगा तो पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, इस तरह का फैक्ट हमारे पास है. और जब पीटी पेंगुइन है तो पीटी फ्लाई कर पाएगा क्या? नो. एंड दैट्स वाई अभी हमारा नया कंक्लूजन ये रहेगा कि पीटी कैन नॉट फ्लाई. तो पहला जो हमने फैक्ट बनाया था कि पीटी कैन फ्लाई उसी को अभी हम यहाँ पे इनवैलिडेट कर रहे हैं. तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ वी आर परफॉर्मिंग द नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. तो ध्यान दीजिएगा नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में अगर हमारे फैक्ट्स अगर अपडेट हो रहे हैं तो फैक्ट्स अपडेट होने की वजह से हमारे कंक्लूजन जो होंगे वो कंक्लूजन भी चेंज होंगे. गेटिंग इट? नाउ वी हैव टू सी सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. The first we have to see the advantage of non-monotonic reasoning. For real world systems such as robot navigation we can use non-monotonic reasoning. तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारा डेटा या हमारे फैक्ट्स जो रहेंगे वो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेंगे. तो कंटिन्यूसली जहाँ पे अपडेशंस होते रहेगा वहाँ पे बार बार हमारे कंक्लूजन्स भी अपडेट होंगे. तो इन दैट सिनेरियो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग विल बी द बेस्ट वन. इन नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग वी कैन चूज प्रोबेबिलिस्टिक फैक्ट्स एंड कैन मेक द अजम्पशंस. तो अभी हमने बोला था कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन अनसर्टन है तो अनसर्टन इंफॉर्मेशन के लिए नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग विल बी द बेस्ट वन. नाउ वी हैव टू गो फॉर द डिसएडवांटेजेस. तो इन नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग द ओल्ड फैक्ट्स में बी इनवैलिडेटेड बाय एडिंग न्यू सेंटेंसेस. तो अभी ये डिसएडवांटेज ही हमारा एडवांटेज था. क्यों? क्योंकि नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पुराने वाले फैक्ट्स जो होंगे उनको हम यहाँ पे इनवैलिडेट करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी और इंफॉर्मेशन अपडेट होने की वजह से अभी हमारे फैक्ट्स जो है वो इनवैलिडेट हो रहे हैं. तो कंटिन्यूसली हमारे कुछ फैक्ट्स को हम इनवैलिडेट करते रहते हैं. दैट में बी द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग. बट इसी वजह से मोनोटोनिक रीजनिंग हमारे लिए यूजफुल भी है. तो ये कैन नॉट बी यूज फॉर थ्योरम प्रूविंग. दिस इज व्हाट द सेकंड डिसएडवांटेज. क्यों? थ्योरम प्रूविंग में हमारे फैक्ट्स बिल्कुल कांस्टेंट होने चाहिए बट यहाँ पे हमारे फैक्ट्स कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं. गेटिंग इट? तो दिस वाज ऑल about what are the various reasoning techniques in artificial intelligence, their advantages and disadvantages. Thank you.